1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, ल्यूक 2 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स, ड्यूटरोनॉमी 11 चैप्टर 12 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन से 20 वचन, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महानता के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो काम हमारे अंदर शुरू किया है वो अंत तक लेकर जाओगे, हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें इस मिट्टी में सड़ने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि इस मिट्टी के अंदर पिता आपकी सामर्थ्य को देकर आप इस पृथ्वी के ऊपर काम करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, यह मिट्टी पिता बदनाम अवस्था के लिए नहीं है, यह मिट्टी पिता अधर्म और पिता हर प्रकार के पिता परमेश्वर इस सड़ाहट के संसार के अंदर के प्रभाव के नीचे रहने के लिए नहीं है। इस मिट्टी का आदर कीजिए पिता परमेश्वर, यह मिट्टी हम आपको दे चुके हैं खुदा इस मिट्टी को पिता परमेश्वर शैतान के हाथों में पड़े रहने मत दीजिए। शैतान के छल कपट पिता परमेश्वर इस मिट्टी का पीछा करने मत दीजिए। यह मिट्टी पिता परमेश्वर आपके राज्य के कामों में पिता आपके गुणों में भरता जाए और पिता आपको महिमा देता जाए। हमारे समय बदलने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हम नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे ल्यूक 2 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स। ल्यूक 2 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Augustus taxed the Roman Empire, Christ's nativity, his circumcision, he questioned the doctors, etc. First verse say, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born today this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.
And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 वचन से 20 वचन हम पढ़ रहे थे। हिंदी में पढ़ेंगे हम। यीशु का जन्म। उन दिनों में औगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हकीम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। 8 वचन से आगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इन वचनों के अधीन लाया और हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाइए। हम में पिता परमेश्वर ये वचन फिट एंड फिक्स कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।